because right now I don't know if it's any point in recording, but let's see. Who Shall we knows? mute ourselves? Yeah. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक जय जय ओंकारा। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक जय जय ओंकारा। ओंकारा जय जय ओंकारा। ओंकारा जय जय ओंकारा। ओंकारा जय जय ओंकारा। ओंकारा जय जय ओंकारा। षण्मुख सोदर शक्ति स्वरूपा जय जय ओंकारा। षण्मुख सोदर शक्ति स्वरूपा जय जय ओंकारा। ओंकारा 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 जय जय ओंकारा। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक जय जय ओंकारा। ओंकारा 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 जय जय ओंकारा। ओम श्री महा
गणाधिपतये नमः। जय गुरुदेव। हेलो 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 एवरीबॉडी। अविनाश आजकल वर्चुअल स्क्रीन भी नहीं, रियल स्क्रीन भी नहीं। Oh, is it? And you're on mute. Half the time you're on mute. Yeah, it's happening because this is US time, and I do have some of the calls this time, so with Oh. US. Yeah, but yeah. So not But an when the call is not on, you can switch on and yes. something like That is that. correct. Yep. You are with Seagate. Seagate, you are correct. Yeah. Okay. But Seagate has a e-commerce. No. E-commerce is hobby. Is hobby. Acha. Okay. Hello everybody. नीलिमा जी कैसे हैं? Yes, I'm good. Thank you. Great. सोनल जी कैसे हैं? वो रवि जुले वाला प्रोग्राम भी चल रहा है उधर शायद. Sir, fine, sir. Thank you. How are you? Okay. Wonderful. We can switch over to Ravi Jule program after a while if you want. Maybe 8:45 or something once we are done. I'll post the Ravi Jule is one of the musicians. He's a accomplished musician and a teacher of music, and he's been with the SSY culture for many years and recorded many songs for SSY, many CDs and many programs he has given. Very wonderful musician. He's a teacher of Manoj ji since as long as I remember, which means at least 25 years. He's been teaching Manoj ji. So Sir, I'm already logged in at 2 places. Oh, okay. Over there also at Ravi Jule? Yeah. Okay. On mobile here and on computer there. Okay. Great. Okay, so out of the 3 steps that we have discussed, that we have spoken about on the direct path, Siddha Samadhi Yoga, ये जो तीन जो स्टेप्स को क्या बोलते हैं, पायदान, और तीन स्टेप्स, चलो स्टेप्स ही रखो. थोड़ा लाउड प्लीज, थोड़ा लाउड. अच्छा. So out of those 3 steps of the direct path, अभी भी कम है? नहीं 3 अवस्था. 3 अवस्था. हाँ, 3 अवस्था बोल सकते हैं. 3 states नहीं, actually 3 steps है. 1, 2, 3 steps to reach. Hello, Jai Shri ji. Hi. Wonderful. She lives on one of the quietest corners of Mumbai that I've ever seen. Such a nice corner. Nice street. Very nice. Which place? Thank you. She's near that August Kranti Maidan, right? Yeah. Gowalia Tank. Is it Gowalia Tank or what is it?
Yes, Gowala Tank, Nana Chowk. Nana Chowk, yeah. But inside one of those gullies, very quiet and very, very beautiful. Great, great. Yeah, I never saw that place before till 2 weeks ago. um, Even you can come to Pune I'm inviting every group. We can do satsang here. is it? Yeah, my place. Okay, wonderful. Great, great. ये pandemic चला जाए और हम आ जाएंगे. Definitely. I think we should After plan pandemic. as soon as the pandemic is over, we will have a physical gathering of all the open door participants. Yes. We'll spend at least 1, 2, 3 days together in some beautiful location and together experience all this stuff that we are talking about. Of course, we are experiencing now also, but together. So that's a plan. Steps को कदम बोलते हैं, 3 कदम. तीन हिंदी में, कदम, as a Christian. 3 कदम. Good, good. 3 kadam. Kadam, yeah. Although that may be an Urdu word, there may be a Hindi word also. कदम चल जाएगा. 3 कदम जो है, तो 3 कदम हम समझ लेते हैं एक बार वापस, for people who are new, and even it is always good to remember and realize and remind ourselves, even if we know, because it is very, very important. और जो हमारी आदत इतने सालों की जो आदत है वो वैसी नहीं है, तो उसको अनडू करने के लिए जितनी बार हम इसको दोहराए सही है. हर बार हमको कुछ नया नया समझने को मिलता है. Yes. तो पहला कदम जो है, 3 कदम 3 अवस्था, 3 स्टेजेस है ना, 3 कदम 3 अवस्था. एक स्टेज इज एक अवस्था है. हाँ, एक स्टेज इज अवस्था. एवरी स्टेप टेक्स यू टू अनदर स्टेज. हर एक अवस्था में जाते हैं हम. करेक्ट, करेक्ट. ग्रेट. तो जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये हर एक कदम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. Someone new has joined, looks like Sridhar. If you can just unmute and turn on your video, maybe give a quick introduction. Aapka, Sridhar. Sridhar, you are able to hear me? आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ. Just a minute. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And you can turn on your video also. Okay, sir. Wonderful. We can Okay, see thank you. Thank you. Okay. तो आपका एक quick brief introduction. Sir, my name is Sridhar. I am from Uttara Kannada. I am working in a society as a manager. Okay. Yes. Nice. How did you find out about Open Door? Open Door, I had attended some workshop of yours. Okay. So I was in that link. Yes. Okay, okay. Satsang, in the satsang. Yes, satsang. Yeah, satsang. You have He's done with SSY? SSY. SSY. Yeah. Okay, very nice. Welcome, welcome. And Manoj ji's all videos. We are coming, sir. Correct. Connection. Yes. Correct, correct. Very nice. Welcome. Yes, sir. तो हम ये जो डायरेक्ट पाथ है अपने आप को समझने का, जानने का कि हम कौन है. आप हिंदी समझते हैं श्रीधर? हाँ, यस सर. ओके, वेरी गुड. हाँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करते हैं. तो ये जो 3 कदम है, ये समझने के लिए कि हमारी असलियत क्या है, ये रियलिटी क्या है, ये जो हमें दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. ये जानने के लिए ये 3 स्टेप्स हम लेते हैं.
तो पहले स्टेप में हम अपने आप को पूछते हैं कि हमें जानना है कि हमारी असलियत क्या है, हम कौन है, क्या है, क्या हम ये शरीर है, क्या हम ये हमारे विचार है, क्या हम हमारे फीलिंग्स है, क्या हम हमारी यादें हैं, क्या हम हमारे जो रिश्ते हैं वो है, हमारा नॉलेज है वो है, या हमारा जो धन है वो है। तो हमें बहुत जल्द पता लग जाता है कि ये सभी जो मैंने बताया वो आने या जाने से मैं जो हूँ उसमें कोई खास क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। एक विचार आता है जाता है, हम वहीं के वहीं हैं। धन आता है जाता है, जाता है आता है, हम वहीं के वहीं हैं। हमारे रिश्ते आते हैं जाते हैं, हम वहीं के वहीं हैं। शरीर बदलते रहता है, छोटा था बड़ा होता है, फिर भी हम वैसे के वैसे ही है। तो हम ये सब नहीं है। हमारी यादें भी बदलती है लेकिन हम नहीं बदलते। तो ये जो पहला कदम है, नेति नेति, हम नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसको हम जो भी बदलने वाली चीजें हैं दुनिया में, उसको हम छोड़ते चले जाते हैं ताकि हम वहां तक पहुंच सके जिसे हम छोड़ नहीं सकते। और हमें जब वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बच गया, जो नहीं बदलता है, वही मेरे साथ हमेशा है। और उसकी कुछ क्वालिटीज है मेरी, जो मैं असलियत में हूं। तो ये पहला स्टेप हो गया। और इसको पहुंचने का वेरी इजी वे, अगर हम अपने आप को पूछते हैं, मैं आपको पूछता हूं, आप है? क्या आप है? और आप कहते हैं हाँ मैं हूं। तो क्या देख के आपने कहा कि मैं हूं? किस आधार पर आपने, आधार कार्ड वाला आधार नहीं, कि किस आधार पर आपने कहा कि मैं हूं? तो आपने अपने कपड़ों का या शरीर का, आंखों का, कान का, या आपके विचारों का, यादों का, किसी का आधार नहीं लिया। कुछ और था जिसको आपने देख के कहा कि मैं हूं। और वही डायरेक्ट तरीका है उस असलियत तक पहुंचने का, कि हम अपने आप को पूछे, मैं हूं? हाँ मैं हूं, मुझे पता है। कुछ अगर हमें पता है, आपने कभी देखा होगा कितने इल्यूजन्स होते हैं, लगता है कुछ, होता है कुछ और, सुनाई कुछ और कुछ देता है, एक्चुअली कुछ और होता है। तो जो भी हमारा परसेप्शन है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, उसमें हम 100% कुछ नहीं कह सकते। ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये जो बात है कि मैं हूं, जो किसी भी परसेप्शन या सेंसेशन पे आधारित नहीं है, ये एक आपका फंडामेंटल अंदर का एक ज्ञान है, एक जान है आपके पास कि मैं हूं। आप बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मैं हूं, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। ये एक अंतर क्या आपका खातरीपूर्वक ज्ञान है कि मैं हूं। तो ये हो गया पहला स्टेप, और वहां आप इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, मैं वो हूं। लेकिन हम जीते कैसे हैं? हम जीते हैं एज इफ हम और सारी चीजें हैं। हम जीते हैं जैसे हम मेरी जो अभिप्राय है वो मैं हूं। कोई मेरे अभिप्राय को हिला देता है तो मैं अपसेट हो जाता हूं, या मेरे अभिप्राय के खिलाफ कोई कुछ बोलता What है। is abhipray?
ओपिनियन, Opinion. ओपिनियन, अभिप्राय यानी ओपिनियन। मेरे जो ओपिनियन है उसके खिलाफ कोई अगर कुछ बोलता है तो मैं हिल जाता हूं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। ये क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये जो मेरे अभिप्राय है वो मेरे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, और ये इसमें कुछ अगर कमी हो जाती है, इसका अगर तेज या उसका चमक कम हो जाता है, तो मैं कुछ कम हो रहा हूं। तो हम जीते वैसे हैं, धन कुछ कम हो गया तो हम सोचते हैं कि मैं कुछ कम हो गया। धन बढ़ जाता है तो मैं सोचता हूं कि मैं बढ़ गया। और दोनों बातें गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा ये नेति नेति स्टेप में कि धन आने जाने से मैं नहीं बदलता। जो मैं हूं वो मेरा धन नहीं है, लेकिन हम जीते वैसे हैं। अभिप्राय को थ्रेटन होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, धन में कमी या बढ़ावत हो जाती है तो भी हम हिल जाते हैं, हमारे शरीर में कुछ कमी ज्यादा होता है उसमें भी हम हिल जाते हैं, हमारे रिश्ते जो है उसमें कुछ तब्दीलियां होती है, चेंजेस होते हैं, तो उसमें भी हम हिल जाते हैं। और ये हिल जाना, डिस्टर्ब होना, इसी का नाम है दुख, सफरिंग। ये हिलना इज सफरिंग। और ये हिलना इसीलिए होता है कि हमें पता नहीं कि हम क्या है, हम कौन है। पता है एक्चुअली, पता नहीं वैसा नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं। Who was telling me yesterday that remembering is joy, forgetting is sorrow? Somebody sent me this message. I'm forgetting now who sent it. One of you? Somebody else? Somebody else. Okay. Yeah, when I sent this recording, oh yeah, it was Pankaj Desai, अपने दोस्त USA वाले. Since we have moved the time, उसका USA में, like Avinash is saying, उसका business office start हो जाता है, so he cannot join. But he listens to every single recording and he's always giving comments, asking questions. So his father-in-law, his wife is a dentist, Swati, and his father-in-law he died very recently, few months ago. Very, 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 very divine and very, very evolved soul. और उनका यही सिंपल था डेफिनेशन, रिमेम्बरिंग इज हैप्पीनेस, फॉरगेटिंग इज सॉरो। तो जब हम भूल जाते हैं तब ये सारी चीजें हमें हिला देती है, वेदर इट इज, एंड सबसे डिफिकल्ट शायद शरीर होगा, क्योंकि एक बार हम धन को भी ऊपर चढ़ाव उतार हम सहन कर लेते हैं, अभिप्राय किसी ने अपमान किया वो भी थोड़ी देर के बाद हम सहन कर लेते हैं, लेकिन ये जो शरीर है, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट लास्ट सॉर्ट ऑफ बैस्टियन, जो हमें हमें अपने आप से हमें अपने आप से दूर, या हमें अपने आप से अलग, या हमें अपने आप को भुला देता है, वो ये शरीर है। और तो शरीर को हम थोड़ा करीब से देखते हैं कि क्यों हम ये शरीर में इतने अटक जाते हैं, क्यों हम शरीर को मैं हूं ये सोच लेते हैं। तो शरीर, एक तो हमें पता है कि ये शरीर बदल रहा है, और उसके बदलने से मैं नहीं बदलता।
जो आप 5 साल के थे वही अभी हो, 10 साल के थे वो भी अभी हो, 15 साल वो भी है। जो आप अपने आप को जो मैं कहते हैं, जो मैं हूं, आई, वो मैं 5 साल वाला मैं, 15 साल वाला मैं, अभी जो उम्र है वाला मैं, सारे मैं कोई अलग अलग मैं है या सेम मैं है? अपने आप से पूछो, अलग अलग मैं या सेम मैं? सेम मैं, नो चेंज। तो शरीर बदला, मैं नहीं बदला, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। हाँ जयश्री, यू आर सेइंग समथिंग? और जयश्री जी, अच्छा किसी और से बात करें। वन मोर न्यू नेम आई एम सीइंग, सुनील वरुडे। जरा अनम्यूट कर किए और वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सुनील, ओके, जब ये आएंगे तभी देखेंगे। तो ये शरीर को ये नेति नेति में अपने आप से अलग है, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेकिन ये एक तरीका है कि हम देखें कि मैं वही हूं, 5 साल वाला मैं, 15 साल वाला मैं, सेम मैं, नॉट डिफरेंट। तो मैं ये शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर बदल गया, मैं नहीं बदला। और एक तरीका है इसको देखने का, शरीर को पहचानने का, कि ये सिर्फ एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम ये जो जीवन वाला जो सपना चल रहा है, वो सपने को हम अनुभव कर सके, उसके लिए ये यंत्र है। ये सपने को देखने का, सपने को छूने का, सपने को सुनने का, सपने को मिलने का, सपनों से बातें करने का, सपने में सब कुछ जो हम करते हैं जिंदगी में, वो सारे सपने वाली जो बातें हैं उसको अनुभव करने के लिए एक यंत्र है ये शरीर। और यंत्र मैं नहीं हो सकता। तो ये यंत्र है, उसको हम कैसे समझे या कैसे उसका अनुभव के तौर पर, ये 5 साल 15 साल 25 साल वाली बात जो है, ये थोड़ा लॉजिक वाला है। ये लॉजिकल है कि हाँ ये शरीर बदल गया, मैं नहीं बदला, लॉजिक है कि मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन अनुभव के तौर पर हम कैसे समझें कि ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर नहीं हूं? तो ये शरीर जो है, ये है, उसका हमें, इसकी हमें अगर सच्चाई को अगर हमें जानना है, तो एक एक करके एक जो तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को जानते हैं, हर एक को हम देखते हैं, और उस तरीके में गहराई में अगर जाएंगे और देखेंगे कि क्या है ये शरीर, और ये क्या है जिसके भरोसे पर मैं कहता हूं कि मैं ये शरीर हूं। या शरीर की कोई अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, तो है कि नहीं, वो हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करिए, ताकि हम जो दिख रहा है उसको एक साइड पे रखते हैं और कुछ अलग इंद्रियों से हम इसको देखते हैं कि मैं ये क्या क्या कह रहा हूं कि ये मैं ये शरीर हूं। तो अभी आपकी आंखें बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये शरीर के अस्तित्व के बारे में आपको क्या पता है?
ये शरीर है, ये इस वक्त आपको कैसे पता है? तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अनुभूति हो रही है। आप जहां बैठे हैं, जहां आपका वजन कुर्सी पर जा रहा है, वहां हो सकता है कुछ अनुभूति हो रही है। आपके पैर में कुछ सेंसेशन हो सकता है, आंखों के पीछे कुछ सेंसेशन हो सकता है, कहीं दर्द अगर है शरीर में तो वो दर्द का अनुभव हो रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर हम कहते हैं कि मेरा ये शरीर है, उसकी सच्चाई है, ये असलियत में है। तो देखिए कि एक्चुअली शरीर है, ये एक कंक्लूजन है। एक्चुअली क्या है? ये अनुभूतियां हैं, सारी अनुभूतियां हैं। एक सेंसेशन है, टिंगलिंग ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट और सम पेन, ऑल दी सेंसेशंस और अनुभव हो रहे हैं। शरीर का होना एक कंक्लूजन है, एक कॉन्सेप्ट है, एक इन्फरेंस है, एक कंक्लूजन है। रियलिटी है या नहीं उसका हमें 100% हम नहीं कह सकते हैं। हम इस वक्त राइट नाउ आंखें बंद है तो हम यही कह सकते हैं कि मुझे कुछ अनुभूतियां हो रही है, यही कह सकते हैं हम। ये शरीर है ये हम नहीं कह सकते। आप कहोगे कि मैं छू सकता हूं, मैं अपने पैर को या अपने हाथ को छू सकता हूं, तो आंखें बंद रख के ही जस्ट टच योर leg or your hand, touch your two hands to each other, और देखिए कि हम ये कंक्लूजन करते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, ये नाम देते हैं। वरना अनुभव के तौर पर सिर्फ यही है कि एक कोई सेंसेशन या अनुभव हो रहा है। और उसी अनुभव को देखते रहिए। मान लीजिए आप अपने हाथ को एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, रब कर रहे हैं स्लाइटली, और ये एक सेंसेशन आप तक पहुंच रहा है, जिसको हम नाम देते हैं कि ये मेरे हाथ को मैं मल रहा हूं। लेकिन ये कंक्लूजन है, अनुभव के तौर पर यही है कि कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रहा है अपने आपको, आपके मन में कुछ अनुभूति हो रही है, यही सच्चाई है। और अब देखिए कि ये जो अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति को आप अनुभव कर रहे हैं, उसी की वजह से इसका अस्तित्व है। आप अगर ये अनुभूति को इस घड़ी में इसको अनुभव नहीं कर रहे होते, तो ये अनुभूति का कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आपके जानने से, आपका जानना और यह अनुभव, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये हाथ एक आइडिया है, उससे सच्चाई की तरफ और आगे जाना है तो हाथ सच्चाई नहीं है, ये अनुभूति सच्चाई है।
उससे भी आगे सत्य की तरफ बढ़ना है हमें, तो ये अनुभूति की भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक अनुभव हो रहा है, वो सच है। उससे भी आगे अगर हम जाएंगे तो ये अनुभव की भी सच्चाई हमें छोड़नी पड़ेगी और हमें यही कहना पड़ेगा कि ये मैं जानता हूं, इस अनुभव को जानता हूं, ये सच्चाई है। ये अनुभव की भी सच्चाई के बारे में मैं आगे सत्य को और आगे ले जा सकता हूं कि मैं ये अनुभव कर रहा हूं और ये अनुभव को मैं जानता हूं। तो इसी तरह से हम हर एक जो इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, जैसे हम देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ छूते हैं, कुछ स्मेल करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, ये सारी जो जो सिग्नल है जिसके आधार पर, जिसके भरोसे पर हम कहते हैं कि ये शरीर का अस्तित्व है। जैसे हमने हाथों को मलने को अपनी आखिरी सच्चाई तक ले लिया, तो ये सारे अनुभव वहीं पहुंच रुकेंगे कि मेरा जो ये जानना है वो है, बाकी का सब एक कंक्लूजन है या एक लेबल है जो मैं इसको देते जाता हूं, और आखिर में सच्चाई, मेरे शरीर की सच्चाई सिर्फ मैं हूं। आई एम ऑल दैट एग्जिस्ट इन अल्टीमेटली। तो जैसे हमें अगर एक सपना देखते हैं, उसमें भी हम शरीर का अनुभव कर सकते हैं पूरा तरह से। हमें कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, हम छूते हैं किसी को, फिर भी उस सारे सपने की सच्चाई सिर्फ वो मन है जिसमें ये सपना चल रहा है। वो सपने का, वो व्यक्ति जो सपने में है, उसकी कोई असलियत नहीं है, सिर्फ मन है। और वो जो अनुभव, जो मन ये सपना देख रहा है, वही सच्चाई है। एक्चुअली कोई जो सपना में जो भी देख रहे, अपने आप को या आपके रिश्तेदार को या फ्रेंड को, जो भी है, बिल्कुल उसकी कोई असलियत नहीं है, सिर्फ आपका मन है जो उसकी असलियत है। उसी तरह से ये भी जो चल रहा है सब कुछ, उसको आखिर तक ले जाएंगे तो हमें पता चलता है कि एक ही जो ये जानना है, उसको हम जागृति कह सकते हैं, अवेयरनेस कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, कृष्णा कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं। ये ही असलियत है। बाकी ये सब टेम्पररी रूप जो इस असलियत ने लिए हैं, वो सिर्फ एक टेम्पररी, जैसे वेव्स होते हैं दरिया सागर में, वो मौज आते हैं और जाते हैं, लेकिन हर एक मौज की असलियत वो सागर और वही पानी है। तो उसी तरह से ये शरीर को भी हम देखते हैं कि ये जो हम सोचते हैं वो नहीं है, और उसकी जो रियलिटी है वो है मैं। सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, ओनली आई। दिस इज सिंपली एन
इंस्ट्रूमेंट, एन इक्विपमेंट जिसके द्वारा हम इस सृष्टि को, ये सपने को हम देख पाते हैं, हम सपने को अनुभव कर पाते हैं, यंत्र है। तो ये पहला स्टेप है, पहला स्टेज, पहला कदम। दूसरे कदम में हम देखते हैं जो मैं हूं उसके रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। आखिर में इसके कोई गुण नहीं है, इसकी कोई क्वालिटीज नहीं है। इट इज सिंपली अ ट्रांसपेरेंट ओपननेस। फिर भी थोड़ा बहुत हम समझ पाए उसके लिए हम ये भी सोचते हैं कि इसके क्या गुण है। ओपननेस, लविंगनेस, ओकेनेस, पीस, शांति, प्रेम। और तीसरा जो कदम है उसमें हम ये जो गुण है उसी से ये जो सारी सृष्टि है जो हम देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, उसी गुणों से बनी हुई है, ये हम देखते हैं। जैसे कि ये शरीर, हम वापस जब शरीर में जाते हैं, पहले कदम में हमने कहा कि ये मैं शरीर नहीं हूं, सिर्फ मैं हूं। तीसरे कदम में हम वापस ये पुनः प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि ये जो मैं हूं वो क्या है। अगर ये मैं नहीं हूं तो ये क्या है। और जब हम पुनः प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि ये अनुभूतियां जो है, ये जो स्वरूप दिया हुआ है, इसके भी वो उसका मूल तत्व मेरे से ही बना हुआ है। तो वो सभी मैं हूं। और ये मैं को चारों ओर, सभी ओर देखते हुए फिर से हम इस सपने में वापस आते हैं। और ये सब तीनों बातें जानने के बाद द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज और द फाइनल साधना, सी नोइंग दीज 3 स्टेप्स इज एनलाइटनमेंट। जागृति का मतलब यही है कि हम ये तीनों स्टेप जो है उसको हम समझते हैं, जानते हैं, और अनुभव के तौर पर हम कह सकते कि हाँ ये सच है। दिस इज एनलाइटनमेंट। और बाकी जो लाइफ है, सिर्फ ये जो 3 स्टेप हम समझ गए हैं उनको लाइफ में कैसे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लाना। हर एक पल में, हर एक सांस में, हर एक व्यक्ति में, हर एक परिस्थिति में, हर एक मोड़ पर कैसे हम ये ला सकते हैं। सो दैट इज द पोस्ट एनलाइटनमेंट साधना। एनलाइटनमेंट बाद की साधना यही है। तो ये तीनों स्टेप में से फॉर ओवर ये जो सैटरडे संडे हम नहीं मिलेंगे, मंडे को हम मिलेंगे, तो ये 2 दिन में आप ये सोचिए कि ये जो 3 स्टेप है और जो चौथा स्टेप साधना का स्टेप है ऑफ लिविंग लाइफ एज एन एनलाइटेंड सोल, एज अ डिवाइन लाइट, एज अ डिवाइन लाइट इन द वर्ल्ड, उस स्वरूप में जीने का मतलब क्या है। और ये तो 3 कदम है। क्या ये पूरी तरह से क्लियर है आपको, या कौन से स्टेप में क्लैरिटी कम है, वो सोच के आइए। और मंडे वी विल go into more detail of wherever we are not seeing 100% clear everything.
That's for Monday. But meantime, ये जानने के बाद एक ही बात बचती है लाइफ में, और वो है celebration. So celebrate yourself, celebrate life, celebrate each moment. You are perfect the way you are. You are perfection itself. How can you be more perfect? You are perfection itself. Who you really are is perfection itself, is truth itself, is beauty itself, is love itself. ये भरम है कि हमें I need to be more something. You do not. You are already that. We can make our bodies more healthy. We can make our thoughts more clearer. We can make our words more beautiful. We can sing better. We can play better. All those things we can do. But you cannot be better because you're already perfect. You are perfection itself. And use that as a starting point rather than a destination. Start with the perfection that you are and bring that perfection to everything that you see and touch. You know, Guruji often used to say, nothing matters. Nothing matters because everything is already perfect. Nothing matters. But the flip side of the coin is also there, in which everything matters. Because you say so. Ultimately, nothing matters, but you have a choice to say, life matters, people matter, beauty matters, love matters, truth matters. By your say so, it matters. And in that sense, everything matters. So knowing that nothing matters, living as if everything matters, that is the beautiful balance and that beautiful walking on the top of bliss. Knowing that nothing matters, living as if everything matters. Great. So practice that, be that. For the next 2 days, we meet on Monday with your questions. Sanjeev ji, Sonal ji has put a request. What did she say? Sonal has put a request. Yeah. Of recording of today and yesterday's bhajan. Yes, we will post that over the next Saturday, Sunday. Sure. Great. Okay, wonderful. Any comments, questions before we close? 5 minutes. We have 5 minutes if anyone wants to say something or ask something. सभी अपने अपने में What is the last stage known as? मुग्ध हो गए हैं. First one is neti neti. नेति नेति. Atma gun गुण gyan. ज्ञान. Purna pravesh. पुनः प्रवेश. The last one is what? Last one is we haven't given it a name yet. We will think of a name. That's why I asked. Samadhi or sadhana, something like that. Post-enlightenment sadhana, I said. Post-enlightenment sadhana. पर उसको एक हिंदी नाम, संस्कृत नाम कुछ देना चाहिए. Post-enlightenment sadhana. जागृत, नहीं, something like that. केवल ज्ञान પહેલાની પરિસ્થિતિ, જ્ઞાન પહેલા. કેવળ જ્ઞાન પછીની આ છે બધી સાધના હવે. હવે પછીની છે, પહેલાની નથી. તમે કીધું ને post enlightenment. Post means after. પાછળ. કારણ કે knowing these 3 steps is enlightenment. Jayashree, you are already enlightened, okay? Thank you. Already, yes, you are enlightened. The you that you are has no limits, no boundaries, no constraints, no opposition, perfection itself.
And knowing that is enlightenment. Remembering that is enlightenment. So abhi post enlightenment sadhana, which is living like that. That is the sadhana, living as enlightened beings that you already are. Not spending necessarily energy on becoming enlightened. You're already Enlightenment enlightened. is Atma Gyan, right? Second one is Atma Gun Gyan. No. The enlightened, post-enlightenment ma translation ma enlightened is Atma Gyan. What is post? Pad. Keval Gnan means Param Gnan. Pad Param Atma Gyan, Gyan. Param Gyan. Param ne. Pachi થાય છે ને. કેવલ જ્ઞાનમાં પણ એ લોકો કે એમ જ છે કે કેવલ એટલે only જ્ઞાન, nothing else. Only Yeah. No, we are talking about going back into the world and living in Puna the world Pravesh. as Puna Pravesh. Puna Pravesh પછીનો Puna stage છે ને Pravesh આ તો. Pachi is living like that. Uske saath consistent with who you are, living every moment, every interaction, every person, every situation. We bring that knowledge, that awareness into the front. Bringing awareness into front wali sadhana. Puna Pravesh Kraman. Puna Pravesh Brahman. Yeah, Kraman, or yeah, Kraman. Puna Kraman. Kraman means Jina. active. Jina. Yeah. Puna Pravesh Kraman. Yeah. Maybe even something more. Kraman. Puna Pravesh Kraman. Or celebration को क्या कहते हैं? उत्सव या महोत्सव, पुनः प्रवेश महोत्सव. या चलो देखते हैं मंडे तक. Okay, great. Thank you. Yeah, thank you. Jai Gurudev. Bye. Thank you. Jai Gurudev. Bye everyone. Shanti. Jai Gurudev. Hari Om. Shri Gurubhyo Namah. और आप सबको भी नमः. ओम शांति. Thank you.